Hello guys, how are you? I'm sure you are quite well. You are fine, and I'm praying for you all that please stay safe, keep learning. It's my motto, and that is why I'm working for you all to give you good knowledge of English grammar. So, dear students, our today's chapter is pronouns, right? Why pronouns? Because we have already studied about nouns. So it is the second part of parts of speech, which is pronoun itself. In this chapter, we will know about 9 different types of pronouns with their definitions and examples. These students, because there are 9 kinds of pronouns, that is why this video may go too long. So I have decided to make it 2 parts, and this is the first part what we are going to start right today. So I think you will be with me till then, until you do have good knowledge of all the parts of speech, and then after, not only parts of speech, our journey will be continuing, and we will know different types of grammar chapters which are very important for you all. I do have all the things in my mind and I have planned according to that, but because it was very necessary to let you know about all the parts of speech, that is why I have studied it. And today is our pronoun chapter. So without being much more late, let us start it. And before going forward, once more I would like to tell you all, request you all that please guys, you must like, share and subscribe the channel, that is none other than 5-Star English Guru. So let's start our today's chapter, that is pronouns, right? So thank you very much. Stay safe, keep learning and be with English Guru, English 5-Star English Guru. Thank you very much. Thank you all. हाँ, तो चूंकि हमने डेफिनेशन इसका बता दिया है और एग्जांपल्स भी आपको दिया हुआ है, तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन को हम लोग सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करते हैं। तो प्रोनाउंस को सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज द प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन sentences that I have already written on the board. And what is the form of subject as a pronoun and as an object of pronoun? I have written. Let me be side and I will tell you all the things so that you can also see it. So एक बार आप देखिएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि a pronoun can be used as a subject and as an object in a sentence. जो मैंने आपको बताया, तो सब्जेक्ट के रूप में पर्सन, जब आप हमारा पढ़िएगा चैप्टर जो हमने पढ़ाया हुआ है, हमारे पहला वीडियो में होगा, शायद पहला ही वीडियो है, तो एक बार उसको व्यू करिएगा। वहाँ पे आपको पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया हुआ है, उसका पोसेसिव भी बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम बता रहे हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया उसका ऑब्जेक्ट, वी इज द सब्जेक्ट एंड अस इज द ऑब्जेक्ट, यू इज सब्जेक्ट एंड यू इज द सेम एज ऑब्जेक्ट, ही इज द सब्जेक्ट, हिम इज ऑब्जेक्ट, शी इज सब्जेक्ट एंड हर इज ऑब्जेक्ट, इट will go the same, it will be remain the same, it, and they will get changed into them as an object of a pronoun.
तो ये प्रोनाउन को जो है हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बताया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसका जान लिया। अब हम लोग बारी बारी से इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे, उसका डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। सो गेट रेडी, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नो more about the kinds of pronouns as well as definition and their examples, right? So let us start it. हाँ, तो dear students, you are going to know about the types of pronouns in this part, and I have written on the board, so let me be beside to explain you. आपको भी दिखेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स में डायरेक्ट भी उतार सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड होके आपको इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि there are 9 different types of pronouns and they are: first, personal pronoun; second, possessive pronoun; third, demonstrative pronoun; fourth, reflexive pronoun; fifth, emphatic pronoun; sixth, relative pronoun; seventh, interrogative pronoun; eighth, distributive pronoun; and ninth and last, indefinite pronoun. तो ये सारा का सारा जो है टाइप है प्रोनाउन का। अब हम लोग इसके सारे टाइप्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो चूंकि 9 टाइप्स हैं इसके, तो मुझे लग रहा है कि ये अगर एक ही वीडियो में लेके चला जाए तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, एंड सो दैट इज व्हाई आई हैव थॉट टू मेक 2 parts of this pronoun, and this will be the first part having 3 or 4 types of pronoun with their definitions and examples. So let us go through now definitions and examples of the kinds of pronouns. So let's start it. देखिए, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया जा रहा है पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन का। तो पर्सनल प्रोनाउन में इसके 3 टाइप्स होते हैं, और वो 3 टाइप्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पर्सन एंड देयर पोसेसिव्स। तो वहाँ पे आप जाके इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको हम डेफिनेशन इसका बताएंगे, और सेकंड जो है वो आपका पोसेसिव प्रोनाउन होगा। तो आप ज़रा यहाँ से क्लियर देखेंगे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Personal pronouns are what? The personal pronouns, the pronouns that replace nouns that act as the subjects or the objects in a sentence are called personal pronouns. जो भी pronouns है उन नाउन को रिप्लेस करता है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, मी को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे, तो मी भी किसी नाउन के लिए होगा और आई भी किसी नाउन के लिए होगा। तो नाउन प्रोनाउन तो कहते ही उसे हैं जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाले नाउन को रिप्लेस करता है। और एग्जांपल्स आप देख ही रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, और भी मैंने जो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा था इसके पहले, वो सारे के सारे एग्जांपल्स में आएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जो लिखा था। सेकंड जो है पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? द प्रोनाउंस दैट रेफर टू द वर्ड्स, ये वैसे शब्द होते हैं दैट शो पोसेशन। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोसेशन? पोसेशन मीन्स दैट शोज बिलोंगिंग्स ऑफ समवन, किसी चीज पे आपका अधिकार बताता है वो। पोसेशन शो करने का मतलब क्या होता है?
मीन्स टू शो आवर राइट अपॉन एनीथिंग। तो हमारा अधिकार बताने वाला ये प्रोनाउन होता है, आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउंस। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये काउंटेड है इसलिए मैंने इसमें etc नहीं लिखा है। इतने ही है ये इनकी संख्या जो है इतनी ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पोसेसिव प्रोनाउंस हुए जो हमें हमारे किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार बताते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, दिस बुक इज़ माइन, ये एम्फेसिस करता है कि यह किताब मेरी है। अगर उस पर कोई अपना अधिकार बता रहा है तो वो उसको एक तरह से माइन कह के ये बता देता है कि डोंट लुक एट दिस थिंग, दिस इज ओनली एंड ओनली माइन। सो थैंक यू वेरी मच। आगे हम लोग देखेंगे इसके अगले डेफिनेशन की तरफ, थर्ड एंड फोर्थ अभी हम कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देख लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा और इसका या फिर आप नोट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आप सोचेंगे कि आप ही सर खड़े हैं आगे तो हम क्या देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ ताकि मैं आपको आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दूँ और आपको स्क्रीन भी क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो लिखा हुआ है ये क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। The words that identify or point out a noun in a sentence are called demonstrative pronoun. वो नाउन को पॉइंट आउट करता है या उसे आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माई मत कहिएगा, नहीं तो दिस बुक कहिएगा तो वहां पे जो दिस होगा वो एडजेक्टिव में चला जाएगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग वर्ड हो जाएगा नाउन का। फिर हमें दिस को सिर्फ प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करना है, या दैट को या दिस को या दोज को। तो इस तरह से उसके बाद उसके ठीक बाद नाउन नहीं आना चाहिए। अगर इसके ठीक बाद नाउन आ जाएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, जरा इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके बाद अगर नाउन नहीं है, वर्ब है, तो ये प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और ये उस बुक को पॉइंट आउट कर रहा है जो मेरी है। दिस इज माई बुक, तो बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। और ये चार ही होते हैं, काउंटेड हैं, दिस, दैट एंड देयर प्लूरल, दिस एंड दोज। उसमें etc लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये वापस आपको एक बार सब्जेक्ट की तरफ ले जाता है। वे सारे प्रोनाउन जो आपको पुनः सब्जेक्ट की तरफ बैक ले जाते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। मतलब ये एम्फेसिस करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट ने ही ये काम किया है। तो जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और है जो हमने आपको ये चार डेफिनेशन बताया, ये आज के वीडियो में बस चार ही हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अभी 5 टाइप्स और बच रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा ये हो जाएंगे, आपको भी थोड़ा सा लंबा फील होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा और इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो दिस इज़ आवर पार्ट 1 ऑफ प्रोनाउंस चैप्टर एंड आई होप यू ऑल हैव गॉट इट क्लियरली। इफ यू डू हैव एनी डाउट, लेकिन आपको हमने तो कमेंट को ऑफ किया हुआ है कि कुछ अनवांटेड भी इसमें हो जाता था, तो मैंने अभी तो आपको कुछ भी अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया है। खैर कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रह जाएगा
और आप डेफिनेटली आपको जो है क्लियर इसकी जानकारी आज जितना हम लोगों ने पढ़ा, बस आप इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मुझे आपकी फ़िक्र है, आपकी चिंता है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन मंजिल तक लेके ज़रूर चलूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। इट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल दैट आई विल लेट यू go to the summit, the goal, and it's my motto. So thank you very much for the day today. But dear students, don't forget to like, share and subscribe the channel, this 5-star English Guru. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए 5-star English Guru. Thank you very much. Bye.